Hello and welcome to MPS Academy YouTube official site, and this is class 10 history chapter 2, and the name of the chapter is Nationalism in India. Yes, dear students, it's all about our India. So here you can see the tricolor, people movements and all, and in the next slide we are going to have the special words and terms which we will come across in this chapter. So please take a note of this meaning of some special words we will come across in this chapter. Okay, so some 15 or 16 words are there, 17 words, and all the meanings are noted. I hope you will note it down. So let's start. What is nationalism? Nationalism in India means, in India, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. Yes, it is correct. भारत में ये जो आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, ये बहुत ही घनिष्ठता से एंटी कॉलोनियल यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जितने भी आंदोलन हुए उससे जुड़ा हुआ है. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. तो उपनिवेशवाद से जो है संघर्ष, उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष थी, इसमें एक दूसरे के साथ उन्होंने यूनिटी, मतलब पूरी भारत में एक तरह से सभी जगह एक ही तरह था, तो सबको एक सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. तो कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद से जो दमन के सेंस थे, सभी ग्रुप एक साथ आ गए. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, लेकिन डिफरेंटली. ओके, तो अलग अलग सबने सबका अपना अपना लक्ष्य था. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट. कांग्रेस के नेतृत्व, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सभी अलग अलग ग्रुपों को एक मूवमेंट में बदलना चाहा. बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of Indian people. Okay, so first, nationalism in India. What were the main reasons which triggered nationalism in India? Feeling of oneness. It was the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. Impact of war on the nationalist movement, it was increase in taxes, price rise, forced recruitment, crop failure, and influenza epidemic in 1918, emergence of a new leader. So these were the causes. So now let's start one by one. Another one is Satyagraha. Yes, the fight of Satyagraha is for the strong in spirit, not the doubter or the timid. Satyagraha teaches us the art of living as well as dying. This is said by Mahatma Gandhi. The idea of Satyagraha, the meaning means Satyagraha before 1919 means before 1919 what was its meaning? People had to be persuaded to see the truth. यानी लोगों को सच देखने के लिए आग्रह करना था, instead of being forced to accept the truth. The use of violence, मतलब ज़बरदस्ती सच को कबूल करना या सच को आकर देखना. महात्मा गांधी believed that the dharma of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि ये जो नॉन-वायलेंस है ये सबको एक कर देगा. उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में किया. आगे है रोलेट एक्ट. इसका मीनिंग और इसका ऑपोजिशन देखते हैं. दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. तो ये जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, इस रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पूरी पावर आ गई थी और जनता को, प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के अरेस्ट करने के लिए जेल में 2 साल के लिए रख सकते थे. गांधी जी आस्क्ड फॉर अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल की मांग रखी और सारे वर्कर जो है स्ट्राइक पर चले गए. लोकल लीडर्स वेर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर. Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi and martial law was imposed and General Dyer took command of Amritsar. और ये सब होने के बाद सरकार ने क्या किया, जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर के उनको उठाकर अमृतसर में उठा लिया और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से मना कर दिया गया. मार्शल लॉ दैट मीन्स इमरजेंसी लागू कर दी गई और अमृतसर का कमांड जनरल डायर के हाथ में आ गया. ठीक है, यहाँ एक नोटिस आप देख रहे हैं, ये जलियांवाला बाग की एक छोटी सी तस्वीर है. इस नोटिस में ये लिखा गया है कि कैसे कांग्रेस ने वो ज़मीन, जलियांवाला बाग ज़मीन ख़रीदी और वहाँ पर जब मॉन्यूमेंट्स बनाए
ताकि उन शहीदों को याद किया जा सके। तो जलियांवाला बाग एक बार हम देख लेंगे इट्स इंसिडेंट कैसे हुआ। ऑन 13 अप्रैल विलेजर्स वेयर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ गैदर्ड एट जलियांवाला बाग अमृतसर टू अटेंड अ फेयर। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन, अमृतसर में उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू है और वो एक मेला में शामिल हो गए। जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर किलिंग हंड्रेड्स। जनरल डायर ने क्या किया, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए, फायरिंग की आदेश दे दी और सैकड़ों लोग मारे गए। पीपल अपोज द किलिंग्स बाय अटैकिंग गवर्नमेंट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एट्सेट्रा। लोगों को जब पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, किस तरह से, सरकारी भवनों पुलिस स्टेशनों पर हमला करके। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड। और सरकार ने इसका जो जवाब दिया, बहुत ही क्रूर दमन उन्होंने किया, लोगों को जेल में डाला जा रहा था और गाँवों में बम बरसाए जा रहे थे। ये था जलियांवाला बाग कांड। आगे हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ, महात्मा गांधी वांटेड अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बाय ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। तो महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिमों को एक करना चाहते थे। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ हार्श पीस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। ऑटोमन एम्पायर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो ऑटोमन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर के ऊपर बहुत ही हार्श या यूं कहे कि कठोर पीस ट्रीटी जो है ऑटोमन के सम्राट खलीफा के ऊपर लागू कर दिया गया था। तो इसके खिलाफत कमेटी, इसके खलीफा की शक्तियों को बरकरार रखने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अली एंड शौकत अली डिस्कस्ड विद महात्मा गांधी अबाउट अ यूनाइटेड मास एक्शन। गांधी कन्विंस्ड कांग्रेस फॉर द नीड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी जी ने कांग्रेस को कहा कि एक असहयोग आंदोलन की ज़रूरत है खिलाफत के लिए, और अली ब्रदर्स को सितंबर 1921 में पकड़ के जेल कर दिया गया था। अभी नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन क्यों और इसके क्या रास्ते थे। गांधी जी इन हिज बुक हिंद स्वराज declared that British rule in India was only possible due to the cooperation of Indians. If Indians refused to cooperate, British rule would collapse. तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत में जो ब्रिटिश रूल है यानी अंग्रेजी शासन है वो इसलिए संभव है क्योंकि भारतीय लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, और अगर भारतीयों ने सहयोग देना बंद कर दिया तो ब्रिटिश शासन टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। नॉन कोऑपरेशन वाज टू अनफोल्ड इन स्टेजेस। नॉन कोऑपरेशन कई स्तर पे बनना था। पहला था सरेंडर ऑफ टाइटल्स, उसके बाद बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट, और फाइनली अ फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसे हम CDM भी कहते हैं। ये सब 3 स्टेज थी, पहला सरेंडर करना, फिर बॉयकॉट करना और सिविल डिसओबीडियंस। लीडर्स इन कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन एट नागपुर इन December 1920. They compromised and this non-cooperation was launched. Now, differing strands within the movements. नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था इसके अलग अलग स्ट्रैंड थे, अलग अलग लोगों की रूप थी। पहला द मूवमेंट इन टाउन्स, रिबेलियंस इन द कंट्री साइड, अवध पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट इन गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, स्वराज इन प्लांटेशंस। इन सभी जगहों पर मतलब अलग अलग था, सबका अपना स्वार्थ था, सबका अपना लक्ष्य था। जो मेन सेंट्रल मोटो होना चाहिए था नॉन कोऑपरेशन का, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा था ये मूवमेंट। तो अभी कैसे हुआ था मूवमेंट्स, टाउन्स में क्या हुए थे, रिबेलियन इन द कंट्री साइड यानी गाँवों में क्या हुआ था, अवध में किसानों का क्या मूवमेंट था, गुडम हिल्स के आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, और स्वराज प्लांटेशन में स्वराज की क्या बात हुई थी, अगले स्लाइड्स में हम देखते हैं। ओके, तो ये है द मूवमेंट इन द टाउन्स, हाउ द पीपल रिएक्टेड। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, students left government school, government official resigned, lawyers gave up their practices, council elections were boycotted, foreign goods boycotted, liquor shops picketed, foreign clothes burnt, traders and merchants refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. अब ये सब चीज़ें तो हुई। why the movement failed then? Khadi cloth was too expensive, poor people could not afford it, and lack of alternative Indian institutions. ठीक है, तो मिडिल क्लास के लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने नौकरी छोड़ दी, फिर इलेक्शंस, बहुत सारी विदेशी चीज़ों को जलाया गया, दारू की शराब की जो दुकानें थी उनको पिकेट किया गया। लेकिन अब क्या हुआ कि खादी बहुत महंगी थी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस, दूसरी संस्थाएं, अंग्रेजी संस्थाओं के बदले दूसरी संस्थाएं नहीं थी, इसलिए ये मूवमेंट फेल कर गया। नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स कंट्री साइड, अवध में क्या हुआ, लेड बाय बाबा राम चंद्रा,
was against landlords who demanded high rents and other cesses. तो अवध में किसान जो थे वो बहुत लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा रेंट मांगते थे. Peasants demanded reduction of revenue, abolition of बेगार and social boycott of landlords. अब जो किसान थे उनका क्या था? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो कर था उसको कम करना, बेगार को ख़त्म करना यानी बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करना और लैंडलॉर्ड को सामाजिक बहिष्कार करना. कांग्रेस ने इसका सपोर्ट दिया. पार्टिसिपेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू and formation of Awadh Kisan Sabha, 300 branches were set up and efforts to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. अभी प्रयास किया होने लगा कि अवध की जो किसान की स्ट्रगल थी उसको बृहद रूप पर ले जाए. अब ये मूवमेंट क्यों फेल हो गया? डेवलप्ड इन्फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ. तो इस तरह ये डेवलप हुआ जिसमें कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता इससे खुश नहीं थे. वायलेंस इरप्टेड यानी हिंसा हो गई. हाउस ऑफ तालुकदार्स मर्चेंट्स वेर अटैक्ड, बाजार्स लूटेड, ग्रीन हॉर्ड्स टेकन ओवर. मैसेज ऑफ महात्मा गांधी वाज रॉन्गली इंटरप्रेटेड यानी महात्मा गांधी के संदेश को गलत तरीके से लिया गया. ये सब बातें थी, इसलिए हिंसा हो गया, इसलिए ये मूवमेंट फेल हो गया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आंध्र प्रदेश. व्हाट हैपेंड? Tribal movement in Gudam Hills of Andhra Pradesh and why tribals revolted. Government forest policy affected the livelihoods of tribal, denied their traditional rights. You may remember from class 9th, forest and forest policy we have studied in history. तो गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, आदिवासियों के जीवन यापन और उनके जो पारंपरिक अधिकार थे जंगलों वनों में, उसको डिनाई कर दिया, उस पर नकारा. व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग्स, ट्राइबल्स रिवॉल्टेड. और जब सरकार ने सड़कें बनाने के लिए ज़बरदस्ती उन्हें बेगार करने के लिए, बेगार मतलब बिना पैसे का काम करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया. तो विद्रोह करने के नेतृत्व में थे अल्लूरी सीताराम राजू. रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड. और उनका जो क्रांतिकारी थे वो कहते थे कि सीताराम राजू भगवान के अवतार हैं. Talked the greatness of Mahatma Gandhi and persuaded people to wear khadi and give up drinking. Now, what was the outcome of revolt? Raju believed that India could be liberated only by the use of force, but Raju was captured and executed in 1924. तो अल्लूरी सीताराम राजू उन्होंने लोगों से महात्मा गांधी के बारे में बात करते थे, लोगों को खादी पहनने के लिए आग्रह करते थे, शराब पीना बंद करते थे. और राजू का ये मानना था कि भारत हिंसा से ही आज़ाद हो सकता है. बाद में 1924 में उन्हें पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई. स्वराज इन प्लांटेशंस. द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 रेस्ट्रिक्टेड द प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशंस. यानी एक नया कानून बना था 1859 में, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट. यानी इसमें यह था कि कोई भी प्लांटेशन वर्कर बिना परमिशन के चाय बागान को छोड़ के नहीं जाएगा. वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम. लेकिन जो वर्कर्स थे उन्होंने अथॉरिटीज़ की बात नहीं मानी, प्लांटेशन को छोड़ा और अपने घर चले गए. स्ट्रैंडेड ऑल द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, वेर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप. अब चले तो गए, निकल तो गए, लेकिन वो फंस गए, स्ट्रैंडेड हो गए रास्ते में. और रेलवे चल नहीं रही थी, स्टीमर स्ट्राइक पे था और रास्ते में पकड़े गए और पुलिस ने बड़ी बुरी तरह से माना. आगे सिविल डिसोबीडियंस होगा, इसके बारे में हम देखेंगे और भी बातें हैं. तो वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विदड्रॉन. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हटा लिया गया? तो एक तो प्रमुख कारण उस समय था चौरी चौरा कांड. चौरी चौरा आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि पुलिस स्टेशन पर फायरिंग हो गया था, आग जला दी गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे. इन फरवरी 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस. Within Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections of the provincial councils. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. तो चौरी चौरा की कहानी तो आपको याद ही है. आगे देखिए कि महात्मा गांधी को लगा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है कई जगहों पर हिंसक रूप ले रहा है और कांग्रेस के जो नेता थे वो स्ट्रगल से तंग आ चुके थे और वो प्रोविंशियल यानी जो इलेक्शंस होने वाली थी उसमें हिस्सा लेना चाहते थे. तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी और उन्होंने कांग्रेस से बहस की कि भाई काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आइए, इस आंदोलन को छोड़िए. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया. नाउ टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s. 1920 के अंत में जो दो बातें थी वो क्या थी? द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड अराइवल ऑफ साइमन कमीशन. द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में देखते हैं क्या हुआ था कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल, यानी कृषि के उत्पाद की कीमतें लगातार घटती चली गई. पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू.
किसान अपने फसल को बेचना और टैक्स चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा था उन लोग के लिए। इसी बीच भारत में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। साइमन कमीशन बनाया गया था नेशनलिस्ट मूवमेंट जो भारत में चल रही थी उसके रिस्पॉन्स में। क्यों? टू सजेस्ट चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। डिड नॉट हैड अ सिंगल इंडियन मेंबर व्हेन अराइव्ड इन इंडिया वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो साइमन जब भारत आए तो उन्हें ये सुनाया गया साइमन वापस जाओ। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और ये संवैधानिक बदलाव करने आए थे भारत में। Congress changed its goal from Swaraj to Purna Swaraj. Dominion status offered but in an unspecified future. सरकार ने डोमिनियन स्टेटस स्वराज की स्टेटस दे दी लेकिन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, भविष्य में कभी भी, वर्तमान में नहीं। रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस बिकेम मोर असर्टिव। अब जो पूर्ण बदलाव चाहते थे कांग्रेस के अंतर्गत वो ज़्यादा मुखर हो उठे। लिबरल्स एंड मॉडरेट्स ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो जो उदारवादी थे और रूढ़िवादी थे उनका प्रभाव कम हो गया। थस कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल एंड डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। आगे है द सॉल्ट मार्च। यस, दिस वाज द मार्क ऑफ द सिविल disobedience. महात्मा गांधी on 31 January 1930 sent a letter to the Viceroy Lord Irwin stating 11 demands. उन्होंने 11 डिमांड रखे थे अपने पत्र में। 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को पत्र भेजा था। सम ऑफ दीज वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, सम वेयर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अब इसमें तो सामान्य लोगों की जनरल इंटरेस्ट की बात थी, सर्वसाधारण के लिए, और कुछ खास वर्गों के लिए था, उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। और सबसे जो हिला देने वाली बात ये थी कि नमक का कानून जो था, नमक का जो टैक्स था वो हटा देना। He made the salt tax his target and called it the most repressive act of the British government. उन्होंने salt tax को अपना टारगेट बनाया, नमक के टैक्स को, और कहा कि सब ब्रिटिश सरकार का यह सबसे दमनकारी कानून है। महात्मा गांधी's letter was in a way an ultimatum, but Irwin was unwilling to negotiate. महात्मा गांधी की पत्र एक तरह से एक क्या कहें चेतावनी थी, लेकिन इरविन ने बात करने से मना कर दिया। So Gandhi started his famous salt march on March 12, 1930. From Sabarmati Ashram to Dandi, a small coastal village in Gujarat. He started with 78 followers and thousands joined him on his 240 miles route. On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. तो 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे। 12 मार्च यानी लगभग 1 महीना उनको लग गया और बड़े उत्सव के साथ उन्होंने वहां पर नमक के जो कानून थी उसका उल्लंघन किया और अपने हाथों से समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया। और यहीं से शुरू हो गई सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसमें क्या हुआ? पीपल वेयर आस्क्ड टू रिफ्यूज कोऑपरेशन टू ब्रिटिश एंड टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। लोगों को कहा गया कि भाई आप ब्रिटिश सरकार को सहयोग ना करें और अंग्रेजी कानूनों को तोड़ें। पीपल ब्रोक सॉल्ट लॉ, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड। लोगों ने नमक का कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों को पिकेट कर दिया गया। पीपल रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड टैक्सेस, ऑफिशियल्स रिजाइंड, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, बहुत सारे ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन कर दिया और वन में जो लोग थे उन्होंने वन के कानून का उल्लंघन किया। अभी गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या आया इस पे? कांग्रेस लीडर वेयर अरेस्टेड। कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वायलेंस इरप्टेड इन पेशावर व्हेन अब्दुल गफार खान वाज अरेस्टेड। और पेशावर में जब अब्दुल गफार खान को अरेस्ट किया गया तो वहां पर हिंसा हो गई। इन शोलापुर वर्कर्स अटैक ब्रिटिश ऑफिस व्हेन गांधी वाज अरेस्टेड। शोलापुर महाराष्ट्र में है, वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला कर दिया गया जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया। Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten and about 1 lakh people were arrested. तो अब इसमें सरकार ने शांतिपूर्ण ढंग से जो सत्याग्रही थे उनको गिरफ्तार किया। लगभग वो महिला, बच्चे सबको पीटा गया और 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये सब चल रही थी, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें लोगों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। फिर इरविन और गांधी के बीच एक समझौता हुआ। क्या हुआ समझौता? गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए सहमत हुए और गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन सबको छोड़ दिया जाएगा।
द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड गांधी रिटर्न डिसअपॉइंटेड। अब क्या हुआ कि बातचीत की जो दौर थी वो ख़त्म हो गई, बातचीत में सहमति नहीं हुई और गांधी जी निराश वापस लौटे। अब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें सिविल डिसोबीडियंस यानी अवज्ञा आंदोलन करना था, कांग्रेस का ब्रिटिश का साथ नहीं देना था। तो इस कारण गांधी जी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, इस कारण वो रोक कर गए थे। अब फिर जब वापस आए तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पुनः चालू कर दिया, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन 1934 आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी अपना मोमेंटम खो दिया। क्या हुआ देखते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, और इसमें हिस्सा लेने वाले ने मूवमेंट को कैसे देखा। रिच पीजेंट कम्युनिटीज़, तो जो धनी किसान वर्ग थे उन्होंने कैसे देखा। वेयर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको जो आर्थिक मंदी आई हुई थी और कीमतें गिर रही थी, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड led to widespread resentment and they actively participated in the movement। अभी सरकार ने रेवेन्यू कम करने यानी टैक्स कम करने की डिमांड पर मना कर दिया, जिसके कारण वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। वे डीपली डिसअपॉइंटेड विद द गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी इरविन समझौते से काफ़ी ज़्यादा निराश थे। व्हेन मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, लेकिन जब मूवमेंट फिर से पुनः चालू किया गया तो बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। अभी जो गरीब थे, पुअरर पीजेंट्री थी, गरीब किसान थे, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट, वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस, यानी गरीब किसान चाहते थे कि जो रेंट है लैंडलॉर्ड ना लें, वो हटा दिया जाए, और कांग्रेस इसको बहुत सारी जगहों पर सपोर्ट भी नहीं कर रही थी। तो अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से इसको देख रहे थे। अब ज़रा एक बार हम आगे देखते हैं बिजनेस क्लास ने कैसे देखा। रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, तो जो व्यापारी वर्ग थे ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, उसके खिलाफ रिएक्ट किया। वांटेड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that could discourage imports। तो चाहते थे कि भाई ऐसे इंपोर्ट्स जो होते हैं जिसके खिलाफ प्रोटेक्शन उनको चाहिए था। फॉर्म देयर ऑर्गेनाइजेशंस, अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो व्यापारियों ने अपनी संस्था बनाई, कॉलोनियल कंट्रोल जो इंडियन इकोनॉमी पर था उसको हमला किया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM को सपोर्ट किया। Worried of the militant activities, prolonged disruption business and the growing influence of socialism in the Congress, the business group withdrew their support from the movement। भी क्या हुआ कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ कहें तो क्रांतिकारी की जो गतिविधियां थी और बिजनेस बहुत बंद होता था, और कांग्रेस में समाजवाद के बढ़ने के कारण उन्होंने अपना सपोर्ट जो है कांग्रेस से वापस ले लिया इस मूवमेंट से। ये तो थे बिजनेस क्लास। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास में क्या था। अदर देन द वर्कर्स ऑफ नागपुर रीजन, वर्कर्स वेर नॉट मच इंटरेस्टेड इन द मूवमेंट। नागपुर के जो वर्कर्स थे उनको छोड़कर दूसरे वर्कर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। द वर्कर्स स्टार्टेड देयर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो कामगारों ने अपना खुद का एक आंदोलन चलाया जिसमें कम तनख्वाह और कार्य करने की जो स्थितियां थी उसके खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। कांग्रेस फेल्ट दैट इफ सपोर्टेड वर्कर्स देन इट वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इट वुड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। कांग्रेस को लगा कि अगर इस वर्कर्स को साथ दिया जाए तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट भी साथ होंगे, वो एलियनेट होंगे, अलग थलग हो जाएंगे जो साथ नहीं दे रहे हैं, और एक मूवमेंट को जोर मिलेगा। आगे देखते पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो women participated in protest marches, manufactured salt, picketed foreign cloth and liquor shops, and they began to see service to the nation as a sacred duty। तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, नमक बनाए, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाए। Never got good response from the Congress, as Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and Congress was keen only on their symbolic presence। गांधी जी इस बात में आश्वस्त थे कि महिलाओं का जो कर्तव्य है वो घर की देखभाल करना है, और कांग्रेस सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगा हुआ था, यानी महिलाओं के पार्टिसिपेशन को उतना ध्यान नहीं दिया गया। अगला है द लिमिट्स ऑफ द CDM, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सीमाएं क्या थी, क्षमता क्या थी। डिमांड्स ऑफ द अनटचेबल्स एंड दलित्स। द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज। कांग्रेस ने दलितों को इग्नोर किया इसलिए कि सनातनी जितने भी थे यानी उच्च वर्ग थे
उसको ऑफेंड ना हो जाए ऐसा सोच के। महात्मा गांधी कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन एंड डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुड नॉट अचीव स्वराज फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट टोटली एलिमिनेटेड। महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को, अछूतों को हरिजन कहा और ये भी कहा कि अगर अनटचेबल्स को, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया तो भारत में स्वराज नहीं आएगा। The Dalits wanted a political solution for their problems. They demanded reservation of seats in educational institutes, separate electorate to choose their own candidates to the legislative council. और दलित चाहते थे कि उनकी समस्या का राजनीतिक समाधान हो। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सीट रिजर्व करने की मांग कर रहे थे, अलग इलेक्टोरेट चाह रहे थे ताकि वो अपना कैंडिडेट चुन सकें। Dr. B.R. Ambedkar or Bhimrao Ambedkar, the leader of the Dalits, formed an association in 1930 called the Depressed Classes Association. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, DCA. He clashed with Gandhiji at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalits. The British government accepted डॉक्टर अम्बेडकर्स डिमांड। तो ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर की डिमांड को तो मान लिया, लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ अगेंस्ट दिस। डॉक्टर अम्बेडकर फाइनली साइंड अ पैक्ट विद गांधी जी इन September 1932 called the Pune Pact. It gave reserved seats in provincial and central legislative council to the depressed classes and they were to be voted in by the general electorate. Okay? तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए डॉक्टर अम्बेडकर की मांग पर, और सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक प्रस्ताव, क्या कहते हैं, समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, और जिसमें दलितों को रिजर्वेशन दिया गया और जो कि अलग इलेक्टोरेट नहीं बना, जनरल इलेक्टोरेट जो सर्वसाधारण से चुनाव होगा। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो केप्ट अवे फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दलित तो अलग थलग थे ही, मुस्लिम भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग थे। कैसे? Muslim felt alienated from Congress after the decline of non-cooperation and खिलाफत मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग थलग महसूस होने लगा। From mid-1920s, the Congress seemed to be more visibly associated with Hindu religion nationalist groups like the हिंदू महासभा। 1920 के मध्य के बीच कांग्रेस, ऐसा दिखने लगा कांग्रेस हिंदू जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, राष्ट्रवादी ग्रुप थे, हिंदू महासभा थी, उसके साथ ज़्यादा जुड़े हुए महसूस हुए। There were Hindu-Muslim clashes and riots in many cities, which further worsened the relations between the two communities. और इस कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच कई सारे शहरों में दंगे हुए, विवाद हुई, जिसके कारण इन दोनों समुदायों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। Attempt was made in 1927 by Congress and Muslim League to form an alliance. It seemed possible as Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of Muslim League, agreed to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim-dominated provinces, just like Bengal and Punjab. Negotiation failed in 1928 when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. तो कुल मिला के ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होने की प्रयास हुई, जिसमें जिन्ना इसमें सहमत हो गए कि भाई अगर मुस्लिमों को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व मिलेगा सीट और पंजाब और बंगाल में उनका डोमिनेशन होगा तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन M.R. जयकर की वजह से, हिंदू महासभा के मेंबर थे, उनकी वजह से ये बातचीत भी ख़त्म हो गई। आगे देखते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कैसे लोगों में नेशनलिज्म एक सूत्र में कैसे बंधे। तो आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन सिंबलाइज्ड इन फिगर और इमेज, मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन folklore, यूज ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, और उसमें प्रॉब्लम्स इसके क्या क्या थे। खैर, तो सबसे पहला है इसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में ये 4-5 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इमेज ऑफ भारत माता, it was the most important thing. The identity of India came to visually associated with the image of Bharat Mata. The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay through his poem Vande Mataram as a hymn to the motherland. Moved by the Swadeshi movement, Avnindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure and she is calm, composed, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने वंदे मातरम कविता के द्वारा बनाया भारत माता का चित्र, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का ये जो पोर्ट्रे किया, आप इसमें देख सकते हैं एकदम शांत, स्थिर और धार्मिक दिख रही है। तो इस चित्र के माध्यम से भारत को दर्शाया गया।
अभी अगला था रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर, यानी भारतीय लोक कथा को रिवाइव करना। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया nationalist sorry in late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. This was done to promote the traditional culture that had been corrupted and damaged by western forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. In Bengal, Rabindranath Tagore, and in Madras, Natesa Sastri made important contributions. अभी 19वीं शताब्दी के अंत तक जितने भी राष्ट्रवादी थे, उन्होंने जितने भी लोकगीतें थी या लोक कथाएं थी जो ओरली किया जाता था, उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। गांव-गांव घूमे और बहुत सारे लीजेंड्स, बहुत सारी कथाएं उन्होंने लिखी और उसको रिकॉर्ड किया। इसमें ऐसी कथाएं जिसको भारतीय संस्कृति जो करप्ट हो गई थी पाश्चात्य लोगों के वजह से, उन्होंने ऐसा समझा कि अगर हम इसको डिस्कवर करेंगे तो यह एक भारतीय पहचान बनेगी और एक गर्व की बात होगी हमारे पास्ट के बारे में। ठीक है। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन मद्रास नतेसा शास्त्री मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। ओके, तो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, जब हम बंगाल कहते हैं या मद्रास कहते हैं तो केवल मद्रास ही नहीं, बंगाल जब हम कहते हैं तो पूरा बंगाल का जो बांग्लादेश वगैरह सारे इलाके, मद्रास जब हम कहते हैं तो पूरा आंध्र प्रदेश वगैरह, ये सब उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाती थी। आइकन्स और सिंबल्स क्या थे? In Bengal, a tricolor flag was designed, and it had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. By 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It had a spinning wheel representing the Gandhian idea of self-help. तो आइकन्स यानी जो सिंबल्स थे, प्रतीक चिन्ह थे, तो बंगाल में तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें पहले वाले झंडे में 8 कमल थे जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को दर्शाते थे। चांद और सूर्य था जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी दिखाती थी। गांधी जी ने फिर अपना एक फ्लैग डिज़ाइन किया जिसमें एक चरखा था जो ये बताता था कि भाई गांधी का सेल्फ हेल्प यानी स्वयं सहायता को प्रदर्शित करता था। अगला है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को पुनः लिखा गया। मॉडर्न एजुकेशन इन कोर्स ऑफ टाइम इवोक्ड इंटरेस्ट इन द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज पास्ट। आधुनिक शिक्षा की वजह से जैसे जैसे समय बीता तो लोगों को ये लगा कि भारत के इतिहास को फिर से समझना चाहिए। अटेम्प्ट्स वर मेड टू रीडिस्कवर एंड री स्टडी द पास्ट इंडिया टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट। तो ऐसे प्रयास होने लगे कि बीते हुए समय को फिर से समझा जाए ताकि वर्तमान में हम कुछ अच्छा कर सकें। Much of the new knowledge about India's past gave a sense of pride to the Indian people and helped in their awakening. तो जैसे जैसे बीती हुई बातों को लाया गया, आगे उजागर किया गया, तो भारतीय लोगों में गर्व की भावना जागी और वे फिर से उनकी आंखें खुल गई, ऐसा कह सकते हैं। Many Indian scholars took up to study of Indian history and culture in a systematic way, and appreciation of India from a specifically Indian point of view began. तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस थे जो चरणबद्ध तरीके से इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने लगे और भारतीय दृष्टिकोण से पढ़ने लगे। This urges the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. और उन इतिहासों को पढ़ने के बाद पास्ट में जितने भी अचीवमेंट्स प्राप्त किए थे भारत ने, उन सब को जानने के मौका मिला और जो दयनीय स्थिति थी ब्रिटिश रूल में उसको बदलने के लिए, संघर्ष करने के लिए एक शक्ति मिली। When the past being glorified was Hindu images were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. और जब बीती हुई बातों का महिमा मंडन किया जा रहा था तो ज़्यादातर हिंदू आइकोनोग्राफी, हिंदू चीज़ों को लिया गया, तो दूसरे समुदाय के लोग अपने आप को अलग महसूस करने लगे। अब एक बार हम पूरा रिव्यू करेंगे इस फुल चैप्टर को। अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कैसे उसका उत्थान हुआ। अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय हिस्ट्री एंड फिक्शन, फॉकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स। तो यूनिटी और नेशनलिज्म आया कहानियों से, गानों से, बहुत सारे प्रेस से और बहुत सारे प्रतीकों से। रविंद्रनाथ टैगोर्स इमेज ऑफ भारत माता एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सॉन्ग वंदे मातरम यूनाइटेड मेनी पीपल एंड कम्युनिटीज। तो भारत माता की तस्वीर और वंदे मातरम ने बहुत सारे लोगों को एक किया। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड येलो फ्लैग वाज डिजाइंड। इट हैड 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. In 1921, Gandhiji had designed the tricolor Swaraj flag, red, green and yellow, with the spinning wheel at the center. This flag represented the Gandhian idea of self-help and became a symbol of defiance. The glorious development in the ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade flourished were discovered with the help of history. And this instilled pride and united the Indians.
तो पास्ट की जितने भी हिस्ट्री का अध्ययन किया गया, इन सभी चीज़ों की वजह से भारतीयों में गर्व की भावना उत्पन्न हुई और सभी भारतीय एक हो गए. लेट्स हैव अ टूर टू इंडिया एंड दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स सी हाउ इज दिस वीडियो. Thank you, and I hope this whole chapter is compiled over here. So we'll meet you in the next video. Till then, have a good time, be safe, bye bye, and enjoy.